Good morning, students. Today we will learn something about body movements. Observe the movements taking place in your body. Sometimes you blink your eyes. When you breathe, you can feel some changes in your body. When you lift something, you can see the changes in your arms and in your hands. When you get up from your chair and you go to the park or you move, walk and run, self move, and you will see that some of your parts will make a change. Animals move from one place to the other. You have to complete the following table. The cow uses the legs to walk. Humans, you also know, make use of their legs to walk. A snake makes use of the whole body and its slithers. The bird uses its wings and legs, and wings it is going to fly, and with its leg it will perch around. Cockroach, it uses its wings and legs and it flies and walks. You can complete this table on your own. Now, in your games period or yoga period, you may have played different kind of games. So you must have done various kind of exercises. When you are playing a game, and if you remember when we are playing cricket, the bowler moves his arm. He rotates the shoulder for bowling. When we bend our arm to touch our shoulders, which part of our arm do we bend? Yes, of course, the elbow. When we bend our leg to pick up something from the floor, which part of our leg do we bend? It is the knees. Here we have a table before you and you have to complete it. The body part that is involved, that is the neck. Does it rotate completely? No. Does it rotate partially? Yes. And in this way you can complete the whole table. Wrist यानी कलाई, आप क्या इसको घुमा सकते हैं? हाँ. फिंगर्स, आप क्या इनको एक ही पर्टिकुलर एंगल पे बेंड कर सकते हैं? नीज, आप इनको बेंड कर सकते हैं. एंकल, आप रोटेट कर सकते हैं. तो इसी तरह से आपको एक पूरा टेबल, टोज, बैकबोन, बैक है आपका, हेड है, एल्बो है, आर्म है, इसी तरह से इसको पूरा करना है. Did you notice that we are able to bend and rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like in the elbow? Elbow की तरफ आप मोड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक joint है. Shoulder को भी हम लोग घुमा सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर भी एक joint है. Neck में rotation हो सकता है, हम अपने सिर को घुमा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी एक joint है. There are places, these are the places called the joints. यहाँ आपको मालूम होने चाहिए कि बोन्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और हम उनको बेंड नहीं कर सकते हैं. फिर यही जगह पे क्यों होता है? यही जगह पे बेंड क्यों होता है या इसी जगह पे क्यों घूमता है? क्योंकि इन्हीं जगहों पे जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं. अब एक देखते हैं बॉल एंड सॉकेट. एक आपको क्या करना है, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक पेपर को रोल करके एक सिलेंडर जैसा बनाना है. मेक अ होल इन अ ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल, को एक पुराना बॉल लेना है और उसमें छेद करके ये जो सिलेंडर आपने पेपर का बनाया है उसमें पुश करना है. नाउ यू कैन स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल. पुट द बॉल इन अ स्मॉल बोल, एक कोई छोटे से गोल बर्तन में, बोल में रख दें. Does the ball rotate freely inside the ball? Does the paper cylinder also rotate? Compare it with your shoulder and arm. Imagine the paper cylinder to be your arm and the ball is its end. The ball is your shoulder. अब ये देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके तरफ ध्यान दीजिए. इसमें आप देखेंगे पास से ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसमें एक हड्डी का जो आपके हिप, उसमें थाई बोन का जो हेड है वो फिट होता है और इस प्रकार से आप इसको इसी तरह से गोल गोल घुमा सकते हैं. The rounded end of one bone fits into the cavity, hollow space of the other bone. Such a joint allows movement in all directions. अब एक देखते हैं पिवटल जॉइंट. ये पिवटल जॉइंट आपके नेक रीजन में होता है. इससे आप अपना सिर लेफ्ट या राइट घुमा सकते हैं, ऊपर या नीचे कर सकते हैं.
The joint where the neck joins the head is the pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn our head right to left. Its pivotal joint, a cylindrical bone, rotates in a ring. हिंज जॉइंट, आपने कभी दरवाज़ा खोला होगा, दरवाज़ा बंद किया होगा, तो आपने पाया होगा कि दरवाज़ा एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे हो सकता है। ऐसे ही हमारे बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं जो हमारे नीज़ एंड आपके एल्बोज में होते हैं। इस के लिए एक एक्टिविटी करनी है। एक सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड का या थिक चार्ट पेपर में। फिर उसके बाद में उसमें एक पेंसिल लेनी है और उसमें अटैच करना है, छेद करके वो पेंसिल को अटैच करना है बीचों बीच में। अब क्या करना है, एक हॉलो हाफ सिलेंडर बनाना है जिसमें आपने जो पहला सिलेंडर बनाया वो आसानी से आ जाए। अब आपको उसको पेंसिल के तरफ से घुमाना है तो आप देखेंगे कि वो बैक फोर्थ डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। ऐसे ही आपका हिंज जॉइंट काम करता है। Try to move the rolled up cylinder. How does it move? Such a kind of movement is seen our elbow and in the knee. It only allows back and forth movement. कभी भी आप अपने हाथ को बेंड करोगे एल्बो के रीजन में, आप ऊपर लेकर आते हो अपने हाथ को ताकि आप शोल्डर्स को टच कर सके, तो आप ये पाओगे कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वैसे ही जब आप नीज को भी बेंड करते हैं तो वहाँ पर भी एक बैक एंड फोर्थ मोशन ही हो सकता है। तो इन दोनों जगहों पे हिंज जॉइंट होता है। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द हिंज जॉइंट। इट ओनली अलाउज द मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। नाउ फिक्स्ड जॉइंट्स, एक ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो ज़्यादातर हमारे सिर में होते हैं और ये मूव नहीं कर सकते हैं, वो जुड़े हुए रहते हैं। when you this is going to be found in your when you open your mouth you can only move your lower jaw। जब आप अपने मुंह खोलते हो खाना खाने के लिए या कुछ बोलने के लिए तो आपका लोअर जॉ ही मूव कर सकता है, अपर जॉ मूव नहीं कर पाता है। कारण यह है कि अपर जॉ और जो सिर का बाकी हिस्सा है वो जुड़ा रहता है। इट इज हैविंग अ फिक्स्ड, अपर जॉ मूव नहीं कर सकता है और सिर्फ लोअर जॉ मूव कर सकता है। अब आपका आता है ह्यूमन स्केलेटन। ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप टू आवर बॉडी। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। कभी आपने देखा होगा कि आपके एक्सरे रिपोर्ट या तो आपका हुआ होगा या किसी घर में किसी का हुआ होगा, तो उससे आपको शेप, साइज, बोन्स कैसे हैं वो सब समझ में आती है। अब आप ये देख सकते हैं ये ह्यूमन स्केलेटन है। सबसे ऊपर आपका वो स्कल है, फिर उसके ठीक नीचे उस आपका पिवटल जॉइंट है, फिर आप शोल्डर्स देख सकते हैं, रिब केज देख सकते हैं, पेल्विक रीजन है और आपके पैर हैं। अब देखते हैं रिब केज। रिब केज आपने कभी देखा होगा, आपने आपके चेस्ट रीजन में कभी आपने उसको एहसास किया होगा तो वहाँ पर रिब्स होते हैं आपके। द रिब केज यू कैन फील विथ योर हैंड्स। और जो रिब्स होते हैं ये आपके चेस्ट बोन को बैक बोन से जोड़ता है और जब ये जोड़ने के बाद एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम रिब केज कहते हैं। और रिब केज जो होता है वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है जैसे कि लंग्स और हार्ट। अब देखिए बैक बोन है। बैक बोन अगर आप सोचते होंगे एक हड्डी है, बट जो ये हड्डी होती है ये बहुत छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है और इसी वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और लचीलापन आता है, इसलिए आप बेंड कर सकते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हो कि अगर आपका बैकबोन एक ही हड्डी का बनता तो आप बेंड कर पाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप देखेंगे शोल्डर बोन्स एंड पेल्विक बोन्स। शोल्डर बोन्स आपके शोल्डर रीजन में होते हैं, आपके जो पेल्विक बोन्स हैं वो आपके पेल्विक रीजन पे होते हैं जहां आप जिसके सहारे से आप बैठते हैं वहां पर। फिर आता है आपका ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स विच आर जॉइंड टुगेदर। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज नोन एज द ब्रेन।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू।